آج پھر میں اس پیر کے آستانے پر آئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، کچھ بے چینی، کچھ خوف اور کچھ تجسس۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں جنات کی حاضری ہوتی اور پیر صاحب کے پاس ایک خاص علم ہے جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ میں نے جب پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی داستان سنائی تو وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میرے اندر پلنے والا بچہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ ایک جن زادہ۔ یہ راز میں کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی۔ پیر صاحب نے میری جانب دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ جو تمہارے اندر پل رہا ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ اللہ کی مصلحتیں ہم انسان سمجھ نہیں پاتے، مگر یاد رکھو یہ بچہ تمہاری طاقت اور ایمان کی آزمائش ہے۔ ان کے الفاظ میں سکون اور تسلی تھی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی خوف تھا۔ میں نے پوچھا، پیر صاحب، یہ بچہ کیا مشکلات لائے گا؟ کیا میں اس کی پرورش کر سکوں گی؟ پیر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، مگر تمہیں اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یہ بچہ تمہیں مضبوطی دے گا اور تمہیں دنیا کے سامنے سرخرو کرے گا۔ ان کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل میں ایک عزم بھی پیدا ہو گیا۔ میں نے پیر صاحب کے قدم چومے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس امتحان میں سرخرو کرے۔ گھر واپس آتے ہوئے میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہ بتایا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی کسی الجھن کا شکار ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس راز کو خود ہی سنبھالوں گی اور وقت کے ساتھ سب کو بتاؤں گی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا، لیکن اب ایک امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ جن ذات کا راز ابھی پردے میں تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا نام نیلوفر ہے۔ میرا تعلق نہایت غریب گھرانے سے تھا، جہاں زندگی کی ہر صبح ایک نئی آزمائش کے ساتھ طلوع ہوتی تھی۔ ہم 6 بہنیں تھیں جو ایک چھوٹے سے کچے مکان میں زندگی گزار رہی تھی۔ ہمارا باپ دہاڑی دار مزدور تھا جو روزانہ مزدوری پر جاتا اور کچھ بھی کماتا وہ ہمارے گھر کے خرچوں کے لیے ناکافی ہوتا۔ میری ماں ایک ہنرمند خاتون تھی جنہوں نے محنت اور ہنر سے ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیا۔ اماں دن رات سلائی کڑھائی کرتی اور کبھی ہم بہنیں بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتی تاکہ کچھ اضافی پیسے کما سکیں۔ ان کی محنت کا نتیجہ تھا کہ ہم زندگی کی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے۔ غربت کے سبب ہم بہنیں صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسکول کے بعد میں نے اپنی ماں کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ ہم دونوں مل کر محنت کرتے اور جو کچھ بھی کماتے وہ گھر کے خرچوں کے لیے استعمال ہوتا۔ ہمارے لیے ہر دن ایک نئی جنگ تھی، مگر ہم نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ ہم سب بہنیں اب جوان ہو چکی تھی اور والدین کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں اور ابا اکثر رات کے وقت آپس میں باتیں کرتے۔ ان کی سرگوشیاں سن کر ہمارا دل بے چین ہو جاتا۔ ایک رات میں نے ان کی باتیں سن لی۔ ہماری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، مگر ہمارے حالات تو دیکھو، اماں نے آہستہ سے کہا۔ ابا نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے بھی ان کی فکر ہے، کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو دل کو سکون آئے۔ رشتے والی سے کہو، وہ شاید کوئی مدد کر سکے۔ رشتے والی ہمارے محلے کی ایک بوڑھی عورت تھی جو رشتے کروانے میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی اور اماں سے باتیں کرتی۔ نیلوفر ایک نیک اور محنتی لڑکی ہے، میں ضرور کوئی اچھا رشتہ دیکھوں گی۔ ان باتوں کے دوران میری بہنیں بھی خاموشی سے اماں اور ابا کی باتیں سنتی تھی۔ ہم سب کو اپنی شادی کی فکر ستا رہی تھی، مگر ایک دوسرے کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ہمارے پاس کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو والدین کا سہارا بنتا۔ ہمارے لیے ہماری شادیاں کرنا ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں نے کبھی ہار کی جھلک نہیں دیکھی۔ وہ ہمیشہ ہمیں تسلی دیتی تھی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب بہتر کرے گا۔ مگر ان کی آنکھوں کی نمی اور چہرے کی جھریاں ان کی اندرونی پریشانی کی عکاسی کرتی۔ رات کو جب سب سونے چلے جاتے، میں اپنے بستر پر لیٹ کر ان باتوں کو سوچتی اور دعا کرتی کہ اللہ ہمیں ان مشکلوں سے نکالے۔ ہماری زندگی کی ہر صبح ایک نئی امید لے کر آتی، مگر شام ہوتے ہی وہ امیدیں پھر سے مایوسی میں بدل جاتی۔ ایک دن خالہ مہناز، جو کہ محلے میں رشتے کروانے کی ماہر سمجھی جاتی تھی، ہمارے گھر آئی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوشی کی چمک۔ نیلوفر کے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھا ہے، انہوں نے خوشخبری سنائی۔ ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ بھی نہیں ہے،
बस आप अपनी बेटी को मोहब्बत से जो कुछ भी दें और निकाह करके रुखसत कर दें। अम्मा के चेहरे पर एक सुकून की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, हम उनको चाय पर बुलाते हैं ताकि आपस में मज़ीद बातचीत कर सकें। हम सब बहनें बेहद खुश। एक नई उम्मीद जाग उठी थी कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में कुछ खुशियों का इजाफा हो जाएगा। शाम को अम्मा ने पूरे घर को साफ सुथरा किया और मैंने अपना बेहतरीन लिबास पहना। मेरे दिल में कुछ घबराहट हो रही थी और कुछ खुशी भी। जब वो लोग हमारे घर आए तो माहौल में एक अजीब सी रौनक और जोश था। मेरा होने वाला शौहर निहायत खूबसूरत था। उसका गोरा चिट्टा चेहरा और मुस्कुराती आंखें दिल को बहा जाने वाली। वो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और उसके अंदाज से ही जाहिर होता था कि वो मेहनती और जिम्मेदार इंसान है। उसकी शख्सियत में एक अजीब सा सुकून और एतमाद जो मुझे बहुत मुतासिर कर गया। चाय के दौरान उन लोगों ने निहायत मोहब्बत से बात की और हमारे वालिदैन को यकीन दिलाया कि हम नीलोफर का ख्याल रखेंगे और इसे अपने घर की इज्जत बना कर रखेंगे। उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। अम्मा और अब्बा ने भी निहायत खुशी से उनकी बातें सुनी और अपनी रजामंदी का इजहार किया। चाय की महफिल में हंसी मजाक और खुशी की बातें हुई। मेरे दिल में जो खौफ था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक नई उम्मीद ले रही थी। रात को जब वो लोग रुखसत हुए तो घरों में खुशियों का सामान। मेरी बहनें मुझसे लिपट कर हंसते हुए मुबारकबादें देने लगी। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत आए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में दुआ की कि मेरी शादी कामयाब हो और मेरे वालिदैन की दुआएं कबूल हों। हम सब ने मिलकर उस खुशी के लम्हे को मनाया और उम्मीद की कि आने वाले दिन हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। हमारी ज़िंदगी की ये शाम एक नई रोशनी और उम्मीद लेकर आए थे। वालिदैन की दुआएं और हमारी मेहनत हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाती थी। उस रिश्ते की बात ने हमारे दिलों में खुशियों का चिराग रोशन कर दिया था। मैं खुश थी कि मेरे वालिदैन की परेशानी में कुछ कमी होगी। उनकी आंखों में जो तवील मुद्दत से परेशानी और मायूसी नज़र आती थी, अब उसकी जगह एक उम्मीद ने ले ली थी। मेरे वालिद अब ज़्यादा मेहनत करने लगे थे ताकि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे कुछ जहेज़ दे सकें। वो सुबह सवेरे मजदूरी पर निकल जाते और शाम को थके हारे वापस आते, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और इत्मीनान होता था। मेरी माँ भी अपनी पूरी तवानाई और मोहब्बत के साथ शादी की तैयारियों में लगी थी। वो दिन रात सिलाई कढ़ाई में मसरूफ़ रहती। कभी मेरे लिए खूबसूरत कपड़े तैयार करती और कभी मेरी बहनों के साथ मिलकर घर की सफाई और सजावट की मंसूबाबंदी करती। हमारे घर का कोना अब नए सिरे की ज़िंदगी की खुशियों की आमाज का बन रहा था। उन लोगों ने 2 माह के अंदर शादी की तारीख मांगी थी। हम चाहते थे कि हम जल्द अज जल्द तैयारियां मुकम्मल कर सकें। मेरे वालिदैन ने यह फ़ैसला किया कि शादी की तकरीब सादा होगी मगर मोहब्बत और खुलूस से भरपूर होगी। हमारे घर के पास एक छोटा सा बाग था जहां हमने शादी की तकरीब मुनक्किद करने का इरादा किया। मेरी बहनें भी शादी की तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। हर वक्त मसरूफ़ रहती। कभी मेरे कपड़े बनाया करती, कभी शादी की रसूमात के लिए ज़रूरी सामान की फहरिस्त बनाती। उनकी हंसी और खुशियों की गूंज से घर में एक नया जोश और जज्बा पैदा हो रहा था। मोहल्ले की औरतें भी हमारी मदद करने के लिए आईं। खाला महनाज ने हमारी शादी की तैयारियों में बहुत मदद की। वो मुख्तलिफ रिश्तेदारों और मोहल्ले की औरतों को भी बुलाती जो सब मिलकर हमारी मदद करती। वालिदैन की दुआएं और हमारी मेहनत हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाती थी। उस रिश्ते की बात ने हमारे दिलों में खुशियों का चिराग रोशन कर दिया। मेरे वालिदैन की मेहनत और मोहब्बत ने मुझे यकीन दिलाया कि मेरी शादी का दिन हमारे ख़ानदान के लिए एक यादगार लम्हा होगा। जब कभी रात को सब सो जाते, मैं अकेले अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाती। अपने होने वाले शोहर के बारे में सोचती कि उनके साथ ज़िंदगी के हसीन लम्हे गुजारने के ख्वाब देखती। मेरे दिल में उम्मीदें थी, ख्वाब थे और सबसे बढ़कर एक नया एतमाद था कि आने वाले दिन हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। शादी होकर जब मैं ससुराल आई तो दिल में खुशी और कुछ खौफ भी था। नई जगह, नए लोग और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला। मेरी सास ने निहायत मोहब्बत से मुझे घर में खुश आमदीद कहा और मुझे यकीन दिलाया कि अब मैं उस घर की बेटी हूँ। ससुराल का माहौल बहुत मोहब्बत और खुलूस से भरपूर था, जिसने मेरे दिल को तसल्ली दी। अगली सुबह जब मैंने अपने एक नए घर में आँख खोली तो मेरे दिल में एक नई उम्मीद और जोश था। मैं नहा धोकर बाहर आई तो मेरी सास मेरे इंतज़ार में थी। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, बेटी
آج تم نے اپنے ہاتھ کی کھیر بنانی ہے. یہ ایک رسم ہے کہ نئی دلہن کچھ میٹھا پکاتی ہے، پھر ہم اس کو محلے میں بانٹتے ہیں. ان کی باتیں سن کر میں خوشی سے مسکرا دی اور کچن میں چلی. میں نے کھیر بنانے کی تیاری شروع کر دی. میری ساس میرے ساتھ آئی اور محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، مجھے اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی بہت چاہت ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد ہمیں اس خوشی سے سرفراز کرو. ان کی یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. ایک طرف یہ خوشی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں، اور دوسری طرف ایک دباؤ کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں. میں نے کھیر بناتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اور میرے شوہر کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے خاندان کو خوشی دے سکیں. کھیر تیار کر کے جب میں نے ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے محبت سے میری تعریف کی اور کہا، بیٹی، تمہارے ہاتھ میں واقعی جادو ہے. ان کے الفاظ نے میرے دل کو مزید سکون دیا. سسرال میں میری زندگی کی شروعات محبت اور خلوص سے ہوئی. میری ساس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور ہر قدم پر میری رہنمائی کی. میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ ہمیں جلد از جلد اس خوشی سے نوازے جس کی میری ساس کو اتنی چاہت تھی. گھر کے باقی افراد بھی نہایت محبت اور خلوص سے پیش آتے. میرے شوہر بھی ہر وقت میری حمایت میں کھڑے رہتے اور مجھے اعتماد دیتے کہ ہم مل کر مشکل کا سامنا کریں گے. ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کا عزم کی اور اپنے والدین کی دعاؤں اور محبت کے سائے میں نئی زندگی کی شروعات کی. ہر گزرتے ماہ کے ساتھ میری ساس کو ایک امید ہوتی کہ شاید اس مہینے انہیں خوشخبری ملے، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا. ان کے چہرے پر امید کی جگہ اداسی اور خاموشی نے آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگی اور باتیں کم کرنے لگی. ان کی محبت اور خلوص میں کمی آنے لگی اور ان کی نظروں میں ایک سوالیہ نشان اور مایوسی کی جھلک بڑھتی جا رہی تھی. میرے شوہر کے 2 اور بھائی تھے اور میری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اب ساس نے مجھ سے امید لگانا چھوڑ دی اور اپنے دوسرے بیٹے کی شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا. میری خواہش تھی کہ وہ میری بہن کو بیاہ کر کے میری دیورانی بنائے تاکہ ہماری خاندانی محبت اور مضبوط ہو سکے، مگر رشتے والی خالہ نے جب یہ تجویز دی تو ساس نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا، نیلوفر کی بہن کو اپنی بہو بنانے کی غلطی نہیں کر سکتی. ایک بہن بانجھ نکلی ہے، کیا پتہ دوسری بھی ایسی ہو. ان کے الفاظ سن کر میرا دل پوری طرح سے چھلنی ہو گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس، جنہیں میں اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی، میرے لیے ایسے الفاظ کہہ سکتی ہیں. ان کے الفاظ نے میرے دل میں گہرا زخم چھوڑا تھا. میری وجہ سے اب میری بہنوں کے رشتے میں بھی رکاوٹ پڑ رہی تھی. میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ میرے لیے ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکلیں. میں دن رات ان کی خدمت کرتی، ان کا خیال رکھتی، مگر اس سب کے باوجود مجھے ان کی محبت اور اعتماد سے محروم ہونا پڑا. میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. ایک طرف اپنے شوہر کی محبت اور ان کا ساتھ تھا جو مجھے ہر قدم پر حوصلہ دیتے، دوسری طرف میری ساس کے تلخ الفاظ اور ان کا رویہ تھا. میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکالے اور میری ساس کے دل میں میرے لیے محبت اور احترام دوبارہ پیدا کرے. اس مشکل وقت میں میرے شوہر نے مجھے بہت سہارا دیا. انہوں نے ہمیشہ میری حمایت کی اور کہا، نیلوفر، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے. ان کے الفاظ نے میرے دل کو کچھ سکون دیا، مگر میری ساس کے رویے کی تلخی میرے دل میں باقی رہی. جب بھی اماں کی طرف جاتی تو اماں ایک ہی سوال کرتی، بیٹا، تیری طرف سے خوشخبری کب سننے کو ملے گی؟ ان کی آنکھوں میں امید کی چمک اور دل میں بے چینی ہوتی. میں ہر بار آنکھوں میں آنسو لے کر جواب دیتی، پتہ نہیں اماں، میری قسمت میں یہ خوشخبری لکھی بھی ہے یا نہیں. میرے دل پر ایک بوجھ سا رہتا کہ میں اپنی ماں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہی. خاندان کی کسی بھی شادی یا تقریب میں جاتی تو سبھی لوگ یہی سوال کرتے، نیلوفر، تیری شادی کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کیا ابھی بھی تیری طرف سے کوئی خوشخبری کی امید نہیں؟ ان کے سوالات اور باتیں میرے دل کو چھلنی کر دیتی. کوئی کہتا فلاں کی بہو کے دوسرے ماہ خوشخبری آ گئی تھی، کوئی کہتا کسی کے یہاں 5 ماہ میں خوشخبری ہو گئی تھی، تیرے یہاں اب تک کیوں نہیں؟ ان کی باتیں میرے دل کو بہت تکلیف پہنچاتی. مجھے لگتا تھا کہ میں ہر کسی کی نظروں میں ایک ناکام عورت ہوں جسے اپنے خاندان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو وہ چاہتے ہیں. ان کی نظروں میں ایک سوالیہ نشان ہوتا اور ان کی باتوں میں چھپی ہوئی ملامت مجھے اندر سے توڑ کر رکھتے. کبھی کبھی میں خود سے سوال کرتی
क्या मैं वाकई नाकाम हूँ? क्या मैं वाकई उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकती? मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द और बेचैनी पैदा हो जाती। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरी ज़िंदगी में ये वक्त आएगा जब मैं अपने ख़ानदान और ससुराल वालों के लिए एक सवालिया निशान बन जाऊंगी। उन हालात में मेरी बहनें और वालिदैन मेरी मदद करते और मुझे तसल्ली देते, नीलोफर, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब कुछ बेहतर करेगा। उनकी दुआएं और मोहब्बत मेरे दिल को कुछ सुकून देती, मगर अंदर ही अंदर मैं उस तलखी और मायूसी से लड़ रही थी। हर रात मैं अल्लाह से दुआ करती कि वो मेरी मुश्किलात को दूर करे और मेरे दिल को सुकून दे। मैं अपने शोहर के साथ मिलकर हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि हम उस खुशी को हासिल कर सकें, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ता। मेरे शोहर भी मेरे साथ हर कदम पर खड़े थे, मगर ससुराल और ख़ानदान वालों की बातें और रवैये ने हमें अंदर से टूटने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने वालिदैन की दुआओं और शोहर की मोहब्बत को अपनी ताकत बनाया और सब्र व तहम्मुल के साथ उस मुश्किल वक्त का सामना किया। मैंने खुद को यह यकीन दिलाया कि अल्लाह के फ़ैसले पर ईमान रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। वो एक दिन हमें खुशी से नवाज देगा। उन हालात में मेरी मोहब्बत और खुलूस का इम्तिहान हो रहा था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि ससुराल और ख़ानदान वालों की तलखी और मायूसी के बावजूद अपने दिल को मजबूत रखूं और शोहर के साथ मिलकर उस मुश्किल वक्त का सामना करूं। मेरी दुआओं और सब्र ने मुझे अंदर से मजबूत किया और मुझे यकीन दिलाया कि एक दिन हमारी मेहनत और मोहब्बत का फल ज़रूर मिलेगा। मैं उसी उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। शादी को 20 बरस गुजर चुके थे और अभी तक मेरी कोख खाली थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत जवान थी और मेरा सब्र अभी बाकी था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि सब्र का फल मिलेगा। मेरे घर में कोई भी फ़कीर आता, दरवेश आता या कोई मलंग आता, मैं कभी उन्हें खाली हाथ नहीं भेजती थी। आज भी एक दरवेश ने आकर मेरे दरवाजे पर सदा लगाई तो मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ लपकी और एक कटोरी में भरकर आटा दरवेश के थैले में डाल दिया। अचानक उस दरवेश को न जाने क्या हुआ, उसने मेरी आंखों में देखा और कहने लगा, शिद्दत से कोई ख्वाहिश पाल कर बैठी हो। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि मैं सर से पैर तक कांप गई और कहने लगी, हाँ, एक ख्वाहिश है जिसने मेरी ज़िंदगी को अधूरा रखा है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन 20 बरस गुजर चुके, ना तो मेरी वो तलब पूरी हुई और ना ही मेरे दिल से ख़त्म हुई। दरवेश ने मेरी बात सुनी तो मेरे सर पर हाथ रखा। उसका भारी हाथ मेरे सर पर क्या पड़ा, मुझे पूरा वजूद जैसे हल्का फुल्का महसूस। कहने लगा, एक पुड़िया है, ये खा ले और दुआ करना, तेरे दिल में जो भी मामला हो उसकी नीयत कर लेना। अगर कुछ भी मसला हो तो दरिया के पास जो पीर साहब का आस्थाना है वहाँ चली जाना, उन्हें मेरा कहकर अपना मसला बता देना। पीर साहब के पास 1 महीने बाद जाना, उससे पहले मत जाना। दरवेश ने यह कहकर फिजा में एक ऊंची सदा बुलंद की और मैं हैरानी से हाथ में पकड़ी उस पुड़िया को देखने लगी जिसमें न जाने क्या था। दरवेश ने मुझे बोल तो दिया कि इसे खा लेना और दिल में तलब को रखकर दुआ मांगना, लेकिन मैं क्या करती? मैं अजीब से वहम का शिकार होने लगी। समझ नहीं आ रही थी कि उस पुड़िया को खाऊं या नहीं। न जाने उसमें क्या था। उस दरवेश ने मुझे क्यों दी? आखिर उसे मेरी तलब की क्या खबर? मैंने दरवेश की आमद के बारे में अपने शोहर को भी नहीं बताया और उस पुड़िया को संभाल कर रख दिया। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वो खाऊं, क्योंकि मुझे दरवेश की बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन उस रात एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे वो पुड़िया खाने पर मजबूर कर दिया। मैं रात को हस्बे मामूल शोहर के साथ सैन में चारपाई बिछाकर सोई थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रोशनी मेरी तरफ लपकी है। मैंने एकदम से उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मेरे हाथ में कुछ आ गया, जिसे मैंने हैरत से देखा। वो रोशनी वहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद चीज़ अभी बाकी थी। वो एक सुनहरे रंग का पत्थर था जो बहुत कीमती मालूम होता था। मैं हैरत से उलट पलट कर देख रही थी कि अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं एकदम घबरा कर उठ बैठी। मेरा सारा वजूद पसीने में भीग चुका था और उस वक्त यूँ लग रहा था जैसे मेरे हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ, लेकिन मेरे हाथ बज़ाहिर खाली थे। मैं हैरत से उस अजीबोगरीब ख्वाब को देखती रही। समझ नहीं आ रही थी कि दरवेश और उस ख्वाब का क्या ताल्लुक़ है। मैं बेहद हैरान थी, लेकिन एक बात तो मुझे भी समझ आ गई थी कि मुझे वो पुड़िया खा लेनी चाहिए और दरवेश की हिदायत के मुताबिक
مجھے اپنی خواہش کو دل میں دبا لینا چاہیے، اور اگلے دن میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر ہی میں نے وہ پڑیا کھا لی۔ اپنی خواہش کو دل میں دبا لیا اور سوچ لیا کہ اگر اس پڑیا کے کھانے سے میرے دل کی مراد پوری ہوئی تو میں کبھی کسی فقیر کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں کافی مطمئن ہو گئی اور روزانہ کے کاموں میں اسی طرح مصروف رہنے لگی۔ درویش نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد پیر صاحب کے پاس واپس جانا۔ اب میں دن گن گن کر گزار رہی تھی، اور پھر جیسے ہی 1 مہینہ پورا ہوا میں اپنے شوہر سے پیر کے آستانے پر جانے کا کہنے لگی۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، تم تو کبھی بھی پیر صاحب کے آستانے پر نہیں گئی، پھر اب کیا ہوا؟ جبکہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا دل بے چین سا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ان کے آستانے پر جا کر دعا کروں، مجھے ایک بار لے جائیں۔ میرے شوہر نے حامی بھر لی اور ہم دونوں عصر کے بعد آستانے پر چلے آئے۔ آستانہ ویسا ہی تھا جیسے عام آستانے ہوتے ہیں، پر رونق اور پر ہجوم سا۔ ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ ان عورتوں میں آ کر بیٹھ گئی جو پیر صاحب سے ملاقات کی خواہش مند تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے عورتوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور میرا نمبر آ گیا۔ پیر صاحب کی شخصیت بہت باروب تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کا لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا اور سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ان کے ایک کندھے کے اوپر سبز رنگ کا رومال تھا۔ پیر صاحب کے ہاتھ میں موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں، ان ہاتھوں سے وہ تعویذ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، لیکن وہ نظر بہت گہری اور روح میں اترنے والی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دوبارہ سے تعویذ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن انتظار کے بعد میں نے انہیں کہا، مجھے درویش نے بھیجا ہے، اس نے کہا تھا کہ 1 ماہ بعد آپ سے ملوں۔ پیر صاحب نے ہوں کر کے سر ہلا دیا اور پھر کہنے لگے، کیا تم نے وہ پڑیا کھا لی ہے؟ ان کے پوچھنے پر میں حیران رہ گئی، آخر انہیں کیسے پتہ چلا؟ لیکن میں یہ سوال ان سے نہیں کر سکتی تھی، بلکہ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیر صاحب بدستور مصروف رہے، پھر اتنی دیر میں انہوں نے مجھے ایک طرف اٹھ کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے بعد چند عورتوں کا ہی نمبر تھا، لیکن مجھے یہ بات بری محسوس ہوئی کیونکہ نمبر تو میرا تھا۔ پیر صاحب نے میرا مسئلہ بھی حل نہیں کیا اور مجھے اس طرح سائٹ پر بٹھا دیا۔ پہلے ہی کتنی دیر انتظار کے بعد باری آئی تھی اور اب پھر انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم مجھے صبر سے بیٹھ کر انتظار کرنا تھا کیونکہ مجھے اپنی طلب کو پورا کرنا تھا، مجھے اپنے مقصد کو پانا تھا، اسی لیے چپ چاپ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب ساری عورتیں چلی گئی تو پیر صاحب نے گہری نظر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے وہ پڑیا کس چیز کی تھی؟ پیر صاحب کے ایسا پوچھنے پر میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ اٹھی اور میں نے فوراً نفی میں سر ہلا۔ تاہم میری آنکھوں میں خوف سا اتر آیا جبکہ پیر صاحب کہنے لگے، وہ پڑیا اولاد کے لیے تھی اور آج میں اولاد کے لیے تم پر عمل کروں گا، لیکن میں تمہیں ایک بات پہلے ہی بتا دوں کہ وہ اولاد جنات کا بچہ ہوگی۔ جنات تمہارے ذریعے اپنی اولاد پیدا کریں گے جو تمہارے ہی گھر میں پلے بڑھے گی۔ تو کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو؟ پیر صاحب نے جب مجھے یہ تفصیل بتائی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین میں ایک دم خوف زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن پیر صاحب نے آہستگی سے باروب انداز میں کہا کہ ایسا ممکن ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آج تم پر عمل کروں گا، پھر 1 مہینے بعد دوبارہ آنا۔ پیر صاحب کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میں دوبارہ بیٹھ گئی۔ اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بے بس ہو گئی ہوں اور مجھے ہر حال میں عمل کروانا ہوگا، اسی لیے چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی اور پیر صاحب عمل میں مصروف ہو۔ حالانکہ میرا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا اور باہر بیٹھے شوہر کی طرف جا رہا تھا۔ اگر اسے جو اس معاملے کی خبر ہو جائے تو وہ کیا سوچے گا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جرجری آ رہی تھی، لیکن میں نے اس وقت اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے صرف اپنی اولاد سے غرض تھی اور اپنے مقصد کو پانے کا جنون تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں پیر صاحب کے عمل مکمل ہونے تک وہاں چپ چاپ بیٹھی رہی، اور جیسے ہی عمل مکمل ہوا تو میں آستانے سے باہر آ گئی۔ اس وقت میرا جسم بہت درد کر رہا تھا اور بخار کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے جو میری یہ حالت دیکھی تو تشویش سے پوچھنے لگا، کیا ہوا نیلوفر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ پیر صاحب کے دم کی وجہ سے جسم میں حرارت محسوس ہو رہی ہے تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، آئندہ ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ جبکہ میں نے اسے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، پیر صاحب نے بہت امید دلائی ہے کہ ہمیں جلدی اولاد کا تحفہ ملے گا، اسی لیے اگلے ماہ بھی بلایا ہے۔
और अगले माह भी इसी तारीख को आना पड़ेगा। मैंने एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस मामले में आप मेरा साथ दें। मैंने अपने शौहर को जज्बाती तौर पर समझाते हुए जब ये कहा तो वो चुप हो गया। औलाद की ख्वाहिश तो उसके दिल में भी थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से ख्वाहिश नहीं करते थे कि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊँ, कहीं मेरा दिल न दुख जाए। इसीलिए वो हमेशा अपने दिल की बात दिल में ही रखता है। लेकिन मैं जानती थी कि वो भी औलाद के लिए तड़प रहे हैं और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। लेकिन आज पीर साहब के आस्थाने से वापस आने के बाद मैं बहुत पुरुम्मीद थी कि मुझे औलाद नसीब होगी, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, 1 माह के बाद जब मैं दोबारा पीर साहब के पास गई तो उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई कि अब मैं माँ बनने वाली। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरत से मुंह खोले पीर साहब की तरफ देख रही थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे पीर साहब कोई अमृत मेरे कानों में खोल रहे हैं। मैं खामोश थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया। और जब बाहर आकर अपने शौहर से ये कहा तो वो खुद भी हैरान रह गए। शादी के 20 बरस बाद मिलने वाली औलाद की खुशी कुछ ऐसी हमारे जहन और दिल पर छाई थी कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। हम दोनों पे यकीनी की कैफियत में, हम दोनों की आंखों में आंसू थे और होंठों पर मुस्कुराहट थी। फिर डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यूँ मेरी ज़िंदगी के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। मेरे लिए ये एहसासात ही अजीब थे। ये दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बहुत खुश थी और सबसे बढ़कर मेरा शौहर बहुत खुश था। उसने मुझे हथेली का छाला बना कर रखा था। मैं बहुत मुतमईन थी और सब्र से दिन गुजार रही थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और खौफ जन्म ले रहा था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रही थी। लेकिन वो खौफ मेरे दिल में अपने पंजे मजबूत कर रहा था और कभी कभी तो उस डर से मेरी हालत गैर हो जाती। मुझे बहुत महसूस होता कि आखिर क्या होगा जब ये बच्चा दुनिया में आएगा। मैं तरह तरह के वसवसों का शिकार थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल को इत्मीनान दिलाए जो बात रखती, मैं खुद को संभाले रखती। अल्लाह से दुआ मांगती और कहती कि जो मेरे हक में बेहतर है वो ही अता फरमा। मैं बेहद खौफज़दा होती ये सोच कर के अगर मेरे शौहर को पता चल गया कि ये बच्चा जिन्नात का और मैं जिन्नात के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो क्या होगा। वो क्या सोचेंगे कि मैंने ये क्यों किया, सिर्फ एक औलाद को पाने के लिए। मुझे उनसे खौफ आता और मैं डर जाती, सहम जाती। दिन गुजरते जा रहे थे। जैसे जैसे मेरे अमल के महीने गुजर रहे थे वैसे वैसे मैं मज़ीद निखरती जा रही। हर महीने पीर साहब के आस्थाने पर हाज़िरी देती क्योंकि अमल के लिए ज़रूरी था। फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा बहुत खूबसूरत और दिलकश था कि बेइख्तियार मैं और मेरा शौहर उसकी तरफ खींचते चले गए। मुझे उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं माँ बन गई हूँ। वो बच्चा जिसका नाम हमने बहुत शौक से शहरोज़ रखा था बेपनाह खूबसूरत था और दिखने में उम्र से बड़ा नजर आता। हम दोनों मियाँ बीवी तो उसकी नज़रें उतारते नहीं थकते। जैसे ही वो 40 दिन का हुआ तो मैं उसे पीर साहब के आस्थाने पर ले आई क्योंकि उनका हुक्म था कि ये बच्चा 40 दिन का हो जाए तो इसे मेरे पास ले आना। इसीलिए बेटे को लेकर पीर साहब की तरफ चल पड़ी। पीर साहब ने बच्चे को देखा तो बहुत खुशी का इजहार किया और कहने लगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच्चे को लेकर मेरे पास आओगी, क्योंकि अमूमन जिनकी औलाद हो जाती है वो अपने बच्चों को दोबारा आस्थानों में लेकर नहीं आते। जबकि मैंने अकीदत से सर झुकाते हुए कहा, पीर साहब मुझे तो औलाद आपके फैज़ से हासिल हुई, तो क्यों ना इसे यहाँ लेकर आती। इसे भी तो आपकी दुआ चाहिए। या आप इसके सर पर दस्ते शफकत रखें ताकि वो हमेशा कामयाब और सेहतमंद रहे। मैंने बच्चे को पीर साहब के आगे कर। पीर साहब ने सर हिलाकर बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरा और कुछ पढ़ाई करके मेरे बच्चे के ऊपर दम किया। मेरा बच्चा जो पहले इधर उधर देख रहा था एकदम सुकून से आंखें बंद कर गया। पीर साहब काफ़ी देर पढ़ाई करते रहे और बच्चे के ऊपर फूंक मारते रहे। फिर कहने लगे, ये बच्चा बिल्कुल पुरसुकून रहेगा। इसके अंदर जो जिन्नात का शर और खुसूसियात हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। उम्मीद है ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। पीर साहब की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे भूल ही गया था कि ये बच्चा जिन्नात का है। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि पीर साहब कहीं इसका कोई नुकसान तो नहीं। जब वो कहने लगे, नहीं नहीं तुम परेशान ना हो, इसका कोई नुकसान नहीं और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम इसकी माँ हो, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस ख्याल रखना बच्चे को आग के करीब मत करना, आग इसके दुश्मन और इसके लिए ख़तरनाक है। पीर साहब ने मुझे ताकीद करते हुए कहा तो मैंने सर हिला दिया। शहरोज़ जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे उसकी खुसूसियात सामने आती जा रही थी।
वो कभी रोता नहीं था, तकलीफ पर भी उसके आंसू नहीं निकलते। इसके अलावा वो हमेशा मुस्कुराता। और शहरोज़ ने बहुत जल्दी चलना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी दांत निकालना शुरू कर दिए। जो काम करता वो बहुत जल्दी करता, यहाँ तक कि उसने बोलना भी जल्दी शुरू कर दी। अभी वो साल का भी नहीं हुआ था कि काफ़ी लफ्ज़ बोलने लग गया। मैं और मेरा शौहर इस बात पर हैरान होते हैं, लेकिन मैं तो इस बात के पीछे छुपे हुए सच को जानती थी। इसलिए मुझे तो खबर थी कि शहरोज़ में ये खुसूसियात क्यों हैं, लेकिन मेरे शौहर को इस बात की खबर नहीं थी। उन्हीं दिनों सर्दियों का आगाज़ हो चुका था और एकदम से शदीद सर्दी पड़ने लगी। लेकिन मैं चूँकि इस बात को जानती थी कि शहरोज़ के करीब आग नहीं जलानी, इसीलिए मैंने हीटर और कोयलों को कमरे से निकाल दिया। अब की बार हमने कोई भी हीटर वगैरह नहीं जलाया, जबकि मेरे शौहर को काफ़ी सर्दी लगती और वह अक्सर उठकर बावर्ची खाने में जाकर बैठ जाते। मैं उनकी हालत देखती तो मुझे अफसोस होता, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अपने बच्चे के लिए तो मुझे ये कुर्बानी देना ही थी। लेकिन एक रात जब मेरे शौहर को शदीद बुखार था और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे इस बात की दरख्वास्त की कि यहाँ पर हीटर जला दो, मुझे बहुत सर्दी महसूस हो रही है और ठंड भी लगती जा रही है। मेरे शौहर की कपकपाती आवाज़ मुझे बखूबी इस बात का एहसास दिला कि उन्हें वाकई सर्दी महसूस हो रही है। लेकिन मैं क्या करती? मैं शहरोज़ की वजह से मजबूर थी और अपने शौहर को इस बात का सच नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं सच बताती तो शायद उन्हें नागवार गुजरता। इसीलिए चुपचाप बैठी रही और शौहर के ऊपर एक और रज़ाई लाकर डाल दी। लेकिन उन्हें फिर भी ठंड महसूस हो रही थी। वो यही कह रहे थे कि यहाँ मेरे करीब हीटर जला दो। उनकी हालत के पेश नज़र मजबूरन उठकर मुझे हीटर लगाना पड़ा। अभी लगाए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि शहरोज़ की रंगत सुर्ख होना शुरू हो गई। उसकी आंखें अजीब से लाल रंग की होने लगी और चेहरे के तासुरात भी अजीब होते जा रहे थे। मैं घबरा गई और शहरोज़ को लेकर कमरे से निकल आई, लेकिन बाहर आकर भी उसकी हालत नहीं संभली थी। वो उसी तरह अजीब से तासुरात के साथ सुर्ख चेहरा लिए, सुर्ख आंखें लिए मुझे घूर रहा था। मुझे उसे एकदम से खौफ महसूस हुआ। मैंने उसे चारपाई पर लिटा दिया। हालांकि बाहर बहुत सर्दी थी, लेकिन शहरोज़ को आग महसूस हो रही थी, तपश महसूस हो रही थी और बार बार अपने सीने पर हाथ मारता। मुझे अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया था। मुझे बखूबी इस बात का इदराक हो गया था कि पीर साहब ने क्यों मना किया था। अब मैं पछता रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब शहरोज़ की हालत गैर होती जा रही थी। रात का वक्त था, मैं उसे कहीं लेकर भी नहीं जा सकती थी। मैं उसके सिराने बैठ गई और जितनी आयतें और दुआएं आती थी वो सब पढ़ती जा रही थी, उसके ऊपर फूंकती जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरा बच्चा शदीद तकलीफ में था और अंदर मेरा शौहर कमरे में आराम से सो चुका था। उन्हें राहत मिली तो वो सो गए, जबकि मैं बाहर इतनी सर्दी में शहरोज़ को लेकर बैठी थी, लेकिन वो अपने सीने पर हाथ मारता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे दबाव महसूस हो रहा है, जैसे उसे यूं लग रहा है कि धुआं उसके अंदर चला गया है। मैं अजीब सी कैफियत का शिकार थी। मुझे बच्चे की भी फिक्र थी और शौहर की भी परेशानी। खुदा खुदा करके सुबह हुई, लेकिन अभी तक शहरोज़ की हालत नहीं संभली थी। इसीलिए मैं सुबह होते ही शौहर को नाश्ता करवाकर उन्हें पीर साहब के पास जाने का कहकर चली आई। मैंने शहरोज़ को गोद में उठा रखा था। उसकी हालत रात जैसी थी। मैं बहुत परेशानी से पीर साहब के पास आई। पीर साहब उमूमन उस वक्त औरतों की फरियाद नहीं सुनते थे, लेकिन चूंकि मैं परेशानी में आई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे वक्त दिया। जब उन्होंने शहरोज़ की हालत देखी तो मुझसे काफ़ी गुस्सा हुए और कहने लगे, जब मैंने तुम्हें एक बार मना किया था कि आग को इससे दूर रखना है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे हाथ से सारी बात निकल चुकी, अब कुछ नहीं हो सकता। पीर साहब के मुंह से ये सुनकर मैं दंग रह गई और उनसे पूछा, आखिर आप क्या कह रहे हैं? क्या नहीं हो सकता? मैंने अपने खौफ को जुबान दी तो पीर साहब कहने लगे, अब ये बच्चा वापस अपनी दुनिया में जाएगा। अब ये यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने इसका सही से ख्याल नहीं रखा, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अब इसके माँ बाप इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, लिहाजा ये जिन्नात की दुनिया में चला जाएगा। पीर साहब के मुंह से ये सुनकर मैं हैरत के मारे दंग रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं वहीं बैठकर रोने लगी और पीर साहब के आगे फरियाद करने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मैं पीर साहब से कहती जा रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि अब मुमकिन नहीं है। इसके माँ बाप ने पहले ही जिन शर्तों के ऊपर मुझे ये बच्चा दिया था मैं तुम्हें बता चुका था, लेकिन तुमने इसका ध्यान नहीं किया। अब ये वापस जाएगा,
तुम जानती भी नहीं हो कि ये बच्चा जिन्नात के शाही खानदान से है और सिर्फ इसकी हिफाजत के ख्याल से इसके माँ बाप ने इसे तुम्हारी खोख में डाल दिया था, क्योंकि वहाँ पर इक़्तिदार की जंग की वजह से इसकी जान को ख़तरा था। अगर वहाँ के मुकामी लोगों को पता चल जाता कि ये बच्चा आने वाला बादशाह होगा तो वक्त से पहले मार देते, इसीलिए तुम्हारी खोख में दिया था। लेकिन तुमने भी इसका ख्याल नहीं किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये उन्हीं के ख़ानदान में पलेगा, उन्हीं के महल में रहेगा। पीर साहब ने ये कहा और फिर कुछ अमल करके दुआएं पढ़ी और शहरोज़ के ऊपर फूंक मार दी। मैं हैरत से दम बखूद ये अमल देख रही थी। मुझे नहीं मालूम पीर साहब क्या कर रहे थे। मैं तो उनकी बातों की वजह से परेशान होकर बैठ गई। उनके अमल को हैरानी से देख रही थी। पीर साहब के कुछ देर के अमल के बाद ही शहरोज़ एकदम से आंखों से ओझल हो गया। वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। मैं दीवानों की तरह उठी और जहाँ शहरोज़ बैठा था उस जगह को हाथों से टटोलने लगी। पीर साहब से परेशानी के आलम में पूछा, मेरा बच्चा, मेरा शहरोज़ कहाँ गया? पीर साहब कहने लगे, जो उसकी जगह थी और जहाँ उसे होना चाहिए था वहाँ जा चुका है। पीर साहब के ऐसा कहने पर मैंने बड़ी बेयकीन नज़रों से उन्हें देखा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ज़रा सी गलती पर आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। मैंने जानबूझकर वो गलती थोड़ी की। मैंने रोते हुए पीर साहब से कहा। तो वो कहने लगे, तुमने जो भी किया और जैसे भी किया मुझे मालूम है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही एक बात के बारे में बता दिया था। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुमने ख्याल नहीं किया और अब देख लो नतीजा तुम्हारे सामने है। पीर साहब ने मुझे कहा तो मैं किसी हारे हुए मुसाफिर की तरह बैठी रह गई। मेरी सारी जमा पूंजी लुट चुकी थी। इतने अरसे से जो मैं खुश थी और मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मैं भी साहिब औलाद हूँ। 20 बरस के इंतज़ार के बाद मुझे औलाद से नवाजा गया, लेकिन एक ही झटके में वो औलाद मुझसे छीन ली गई। बेआवाज़ आंसू बहाते मैं चुपचाप वहाँ से उठाई। मुझे समझ आ गई थी कि अब पीर साहब से कुछ भी कहना बेकार है। अब मैं उनकी जितनी भी मिन्नतें करूं या जो भी कहूं, अब वो दोबारा एतबार नहीं करेंगे। मैं घर आई तो मेरे शौहर मेरे ही मुंतज़िर बैठे थे। मुझे खाली हाथ देख कर हैरत से शहरोज़ के बारे में दरियाफ्त करने लगे। उनके पूछने पर मैं बेख्तियार रो उठी। मैंने उन्हें सारी हकीकत से आगाह कर दिया। पहली बार उनकी आंखों में बेयकीनी और शिकवा था। मैं उनसे नज़रें चुरा गई और माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपसे हकीकत छुपाई। मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा से औलाद का दुख देखूं, इसीलिए जैसे पीर साहब ने कहा मान लिया। मैं तो बहुत खुश थी, आप भी तो खुश थे। शहरोज़ को पाकर हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन वो हमसे छिन जाएगा। पीर साहब ने मुझे मना किया था कि शहरोज़ को आग के करीब नहीं करना। आपने रात को ज़िद की तो मजबूरन मुझे हीटर जलाना पड़ा, जिसकी वजह से शहरोज़ की हालत ख़राब हो गई और सुबह जब उसे पीर साहब के पास ले गई तो उन्होंने उसे वापस भेज दिया। मैं क्या करूं, मेरी ममता को करार नहीं आ रहा, मेरे दिल को सब्र नहीं आया। मैं बेहद परेशानी में रोती जा रही थी। फिर रोते रोते कब बेहोश होकर गिर गई कुछ समझ नहीं आई। शहरोज़ के बाद ज़िंदगी बोझल हो गई थी। हर लम्हे मुझे यही एहसास होता कि जैसे मैंने उसे अपने हाथों से गंवाया है। एक जुर्म का एहसास मेरे साथ रहता। उस दिन के बाद से मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ कुछ ख़राब सा था। वो नाराज़ रहते और मुझसे कम बात करते। मैं समझ सकती थी कि मैंने उन्हें कितने बड़े दुख से दो चार किया, लेकिन शायद वो मेरी ममता को नहीं समझ पाए। शहरोज़ को गए 3 महीने हो चुके थे और मैं एक लम्हे के लिए भी उसे भूल नहीं पाई। आज भी मामूल का दिन तुलू हुआ और उसी तरह मेरे शौहर काम के लिए निकल गए। उन्हें अभी गए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैं बेहद हैरान हुई क्योंकि हमारे घर तो कोई भी नहीं आता था। फिर सोचा कि शायद कोई फ़कीर होगा, इसलिए बड़ी बेदिली से दरवाजे तक आई। लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसने बेशकीमत लिबास पहन रखा था। उसके साथ एक खूबसूरत बच्चा था। उस बच्चे को मैं बखूबी पहचानती थी। वो शहरोज़ था। उसे सामने पाकर अचानक ही मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई और बेसाख्ता बढ़कर उसे गोद में उठा लिया और उससे प्यार करने लगी। वो औरत सामने देखकर मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, आपकी मोहब्बत देखकर मुझे यकीन आ गया कि शहरोज़ को इससे अच्छा और मजबूत घर कोई नहीं मिल सकता। मैं इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ, उम्मीद है आप इसका ख्याल रखेंगी। ये कहकर वो औरत एकदम से पलट गई।
اور پھر کہاں گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ شہروز میری گود میں پٹر پٹر میری شکل دیکھ رہا تھا اور مجھے زندگی ایک دم خوبصورت لگنے لگی تھی۔